ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದ ಎಂಡಿಎಚ್ ರೈತರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ರಥ. ಹೌದು, ಎಂಡಿಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ರಾಜೀವ್ ಗುಲಹಟ್ಟಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಂತೆ ಭಾರತದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರೈತರ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇರೆ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಮಿಟ್ಟಿ, ನನ್ನ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನುವ ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಿಇಒ ಆದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಮನಚಂದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ರೈತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಅರುಣ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನು ಎಂಡಿಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ರಾಜೀವ್ ಗುಲಹಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತು, ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೈತರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡಿಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ರಾಜೀವ್ ಗುಲಹಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟಿವಿಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಅದರ ಒಂದು ಸಿಇಒ ಆದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ರಥವಂತ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 150 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಚಾನಲ್ನ ಸಿಇಒ ಆದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾವ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಯಾವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ सर, कार्यक्रम को आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट सर, आप ये जो यहाँ बल्लारी को आया है, किस विजन लेकर आए हैं सर? देखिए, बल्लारी के अंदर में हमारे आने का मुख्य कारण यह है कि बल्लारी की जो लाल मिर्च है वो पूरे विश्व के अंदर में विश्वविख्यात है। उसका स्वाद, उसका रंग, उसका जो टेक्सचर है वो पूरी दुनिया के अंदर में विश्वविख्यात है। और पिछले कुछ सालों से पेस्टिसाइड का बढ़ता हुआ जो प्रयोग है उसने यहाँ के स्वाद के ऊपर पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर में जिस हिसाब से बल्लारी की लाल मिर्च को पसंद किया जा रहा था, अभी उसके उतने ही ज़्यादा रिजेक्शंस होने लगे हैं। कारण पता करने पर यह पता चला कि उसके अंदर में पेस्टिसाइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया गया। तो उस पेस्टिसाइड की वजह से बल्लारी की जो लाल मिर्च है वो वहाँ पर रिजेक्ट होने लगी। और इस समय पर जो प्राइजेस 2023 के अंदर में केडीएल क्वालिटी का प्राइस 70,000 रुपये के 65 से 70,000 रुपये पर जो बिका, और अगर मैं 5531 की बात करूँ तो वो तकरीबन 30,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। तो अभी अगर हम देखते हैं उसका प्राइस, तो 5531 14,000 रुपये से 14,500 रुपये यानी 14,500 रुपये के आसपास बिक रही है। और वहीं पर अगर मैं केडीएल क्वालिटी की बात करता हूँ तो वो 24,000 25,000 रुपये पर है। कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में अब उसको लिया नहीं जा रहा। लिया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एमडीएच ग्रुप के जो चेयरमैन हैं राजीव गुलाटी जी, उन्होंने ये देखा कि किसानों को पैसा पूरा नहीं मिल रहा, जो उनका हक अधिकार है वो उनके पास में नहीं पहुंच रहा। तो इसके लिए किसानों को चल करके जागरूक किया जाए, और किसानों को जागरूक करने के लिए कि आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कैसे कम कर सकते हो और कौन सी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आप यूज़ कर सकते हो। हम आईसीएआर के टीम के साथ में और कुछ वैज्ञानिकों के, कृषि वैज्ञानिकों की टीम के साथ में बल्लारी के गांव-गांव में हम जाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। पहले अभियान कहाँ से स्टार्ट किया है सर? देखिए, ये कैंपेन 5 दिसंबर 2024 को भागीरथ चौधरी जी, जो हमारे केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं, उनके घर से ही इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। और तकरीबन आज 8-9 महीने हो गए हैं, और 9 महीने से लगातार ये कैंपेन चल रहा है। और पहले ये कैंपेन की शुरुआत राजस्थान में की गई। राजस्थान के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए। 2000 के आसपास गाँवों के अंदर हम गए, वहाँ पर तकरीबन 50-1,000 किसानों को हमने वहाँ जागरूक किया। और इसके बाद में चलते हुए
राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और यहाँ पर अब कर्नाटक के अंदर में पहुँचे हैं। अच्छा, अभी जो अभियान कर रहे हैं ना, फार्मर्स के ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है? देखिए, जो वहाँ पर अभी रिजल्ट आया उस रिजल्ट के मुताबिक किसान अवेयर हुआ है और आईपीएम की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो टैगलाइन लेकर के चल रहे हैं, मेरे गांव की मिट्टी, शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ। शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ से मतलब ये है कि आप प्योरिटी दीजिए और प्योरिटी दे करके आप अपने स्वास्थ्य के साथ और दूसरों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। सबसे बड़ा मैसेज यही है। और देखिए, जब हम बात करते हैं मेरे गांव की मिट्टी, तो मेरे गांव की मिट्टी से मतलब यह है कि आप अपने खेत की, अपने खलियान की, अपने घर की मिट्टी को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने पर हो क्या रहा है कि उसकी जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है और उत्पादन क्षमता है, वो लगातार नीचे जा रही है। और यहाँ पर अब समय वो आ गया है और टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है कि आप बिना पेस्टिसाइड के भी, यानी कि कम क्वांटिटी के द्वारा भी एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ऐसी ही टेक्नोलॉजीज और कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिनके द्वारा आप जो मेथड बोल रहे हैं, वो मेथड यूज करने से क्वांटिटी कम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसका जो प्रोडक्शन है बल्कि बढ़ेगा और पेस्टिसाइड का जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्शन के ऊपर पे कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्शन इनफैक्ट इंक्रीज करेगा, क्वालिटी इंक्रीज करेगी, स्वाद इंक्रीज करेगा। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड इंक्रीज हो और आपको आपकी फसल का सही दाम मिले। सबसे बड़ा इस समय पर जो हम लेकर के चल रहे हैं, देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किला की प्राचीर से ये आह्वान किया है कि पेस्टिसाइड का प्रयोग कम होना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आपको फीवर हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको एक पैरासीटामोल रेकमेंड करता है कि आप एक क्रोसिन ले लीजिए या पैरासीटामोल ले लीजिए और दिन में आपको एक टाइम पे एक लेनी है, यानी सुबह एक लीजिए, एक शाम को लीजिए, अगले दिन फिर एक सुबह लीजिए, एक शाम को लीजिए। तो उसने ये आपका एक चार्ट डिसाइड कर दिया। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 2 दिन मुझे एक एक करके दवा लेनी है, एक सुबह एक शाम को, और मैं चारों गोली एक साथ ले लूं और उसी समय मेरा फीवर जो है वो ठीक हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो सिमिलरली हम किसान को ये बताने जा रहे हैं कि आप जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो उसका एक पैरामीटर है, उसका एक यूसेज का जो डोज है वो सेट किया गया है। तो जो कृषि वैज्ञानिक आपको रेकमेंड करता है, केवल आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। हम आपको किसी दवा को करने से, उससे रोकने नहीं आए। हम केवल इतना बताने आए हैं कि इसका यूज़ करने का मेथड क्या है और आप अपने पेस्टिसाइड के प्रयोग को किस तरीके से कमतर कर सकते हो, नीचे लेकर के आ सकते हो। तो अभी जो ये आप अभियान प्रारंभ किया है, वो अभियान थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो स्टेट जाके ऐसा अवेयरनेस करना बहुत मुश्किल है। आप कैसे इसको एक्सेप्ट किया? देखिए, स्टेट जा कर के करना बड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और निश्चित तौर के ऊपर पे ये कंपनी भी समझ रही है और कि इस कैंपेन को रन करने में अभी और बदलाव लाने में, सोच में बदलाव लाने के अंदर में करीब 1 से 2 साल का समय और लग सकता है। और लेकिन इस कैंपेन को अगर किसानों ने पिक कर लिया तो निश्चित तौर के ऊपर पे विश्व स्तर के ऊपर पे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को ध्यान में रखने वाला भारत एकमात्र और ऐसा देश होगा। भारत का जो अन्न है और जो अनाज है, जो मसाले हैं, वो विश्व विख्यात हैं। देखिए, वास्को डी गामा भारत के मसालों को देखते हुए, ठीक है, भारत की खोज कर गया, लेकिन अब उन्हीं मसालों के ऊपर पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब उन मसालों की जो विरासत है, जो हमारी लेगेसी है, उसको यहाँ पर सुरक्षित रखने का समय आ गया है। क्योंकि अगर इसको सुरक्षित नहीं रखा और पेस्टिसाइड्स का अगर ध्यान नहीं की रखा और अगर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अगर प्रयोग में नहीं लाए, तो फिर ये विरासत हमारे हाथ से निकल जाएगी। इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में आपको ध्यान रखना होगा और खास तौर के ऊपर पे बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आपके हुबली का जो एरिया है, बेड़गी और हुबली के आसपास का जो एरिया है, लाल मिर्च को जो ग्रो करता है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर और आंध्र प्रदेश का वो एरिया जहाँ पर लाल मिर्च होती है, विजयवाड़ा और गुंटूर, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाल मिर्च इस समय पर चाइना से हो सकता है कि यहाँ के कारोबारी इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि आपकी जो लाल मिर्च है वो रिजेक्ट हो रही है, चाइना की लाल मिर्च पास हो रही है। अगर चाइना
की लाल मिर्च पास हो रही है तो कोई भी निर्यातक, कोई भी एक्सपोर्टर आपकी लाल मिर्च परचेज नहीं करेगा। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये जाएगा कि आपके प्राइसेस आपको नहीं मिलेंगे और लगातार नीचे चले जाएंगे। पिछले साल आपका माल नहीं बिका, क्यों नहीं बिका? क्योंकि रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा थी। इस साल भी कोल्ड स्टोरेजेस यहाँ के पूरे भरे पड़े हैं। मैंने यहाँ पर पिछले 3 दिन से मैंने यहाँ पर हूँ और 3 दिन से हमने यहाँ पर पूरे स्टोर्स का मुआयना किया। यहाँ के सभी कोल्ड स्टोरेजेस इस समय पर फुल हैं और वहाँ पर अभी लाल मिर्च रखने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बायर नहीं है। खरीदार क्यों नहीं है? क्योंकि आईपीएम क्वालिटी नहीं है। आईपीएम क्वालिटी क्यों नहीं? क्योंकि पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो इसी अवेयरनेस को लेकर के ये कैंपेन की शुरुआत आज से यहाँ से होने जा रही है। शेड्यूल क्या है? देखिए, प्रतिदिन तकरीबन हमने 2 प्रोग्राम्स करने हैं। एक सुबह एक गांव करेंगे, एक शाम को गांव करेंगे। वो लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की है और आज से जो शुरुआत होने जा रही है वहाँ करीब करीब एक चौपाल जो लगेगी उसमें 200-300 किसानों को एक साथ एजुकेट किया जाएगा। वैज्ञानिक उनको बताएंगे कि किन प्रैक्टिसेस को आपने फॉलो करना है, किन किन दवाओं का आपने कब और किस समय पर कितनी यूसेज के साथ में, कितनी मात्रा के साथ में आपने उसका प्रयोग करना है। तो ये एक बड़ा, अगर किसानों को ये समझ में आ गया और किसानों ने अगर साथ दिया तो ये हम किसानों को निश्चित तौर के ऊपर पे वायदा भी करना चाहेंगे फार्मर्स को कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर पे आपको प्रीमियम भी मिलेगा। जो मार्केट प्राइस होगा उससे आपको बेटर प्राइस मिलेगा, उससे आपको प्रीमियम के ऊपर पे भाव मिलेगा, ना कि मार्केट प्राइस के ऊपर मिलेगा, बशर्ते कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मापदंड को मैच करने वाले होने चाहिए। ಸೊ ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಏನು ಸಿ ಒ ಆದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ, ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಅವರೇನಾದರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಈ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಇವರೊಂದು ಏನು ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ.